Hello everyone. So today's topic is rotational dynamics of Maharashtra State Board, and this is the first lecture. So I hope you all like the lectures. Let's start with the lecture. The first chapter of physics, that is rotational dynamics. So in rotational dynamics, we are going to study two types of motion. We are going to study two types of motion. One is circular motion and another one is rotational motion. In previous classes, we have studied different types of motion, right? In previous classes, we are known with this motion, that is linear motion. In lower classes, we have studied about this topic, that is linear motion, say 9th and 10th standard, right? So in this topic, that is linear motion, we have seen different types of concepts, that is distance, after that displacement, after that velocity, after that acceleration. These are the some topics which we have studied in lower standard in the topic named linear motion, right? So whenever the object is moving from one point to another point, say point 1 to point 2, it covers some distance. It covers some distance, say of 5 meter. Say of 5 meter. So whenever the object moves from one place to another place, it covers some distance. It covers some distance, and that distance is given in meters or centimeters or kilometers and so on. Meters, kilometers, centimeters and so on. So whenever the particle or the object displays from one point to another point, we have seen it covers some distance, right? So in lower standard we have seen this. Whenever the object want to move from one point to another point, it must have some velocity. It must have some velocity. If the velocity of the object is zero, then the object cannot move from one point to another point. So here we have seen that if the object is displaying from one point to another point, it must have some velocity. If the velocity is zero, then the movement is zero. Right? So this concept which we have seen in the earlier standard, similar concept are going to seen in circular motion also and rotational motion also. We all know about the symbols which we have used in lower standard for this topics, that is distance, displacement, velocity and acceleration. हमने different type के alphabets use किए थे ताकि हम क्या रिप्रेजेंट कर सकें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. से डिस्टेंस का सिंबल क्या था हमारा, डी. डिस्टेंस का सिंबल क्या था हमारा, डी. डिस्प्लेसमेंट का था एस, वेलोसिटी का था वी एंड एक्सेलरेशन का था ए. राइट? So these are the different symbols which are used in lower standard to represent the different types of quantities. So let us see what are the name given of these quantities in circular motion. So हम अब देखेंगे कि सेम क्वांटिटीज को हम सर्कुलर मोशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उनके मीनिंग क्या होते हैं. तो आज का हमारा पहला काम है कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद सर्कुलर motion. Rotational motion is the second half of this chapter, so we are going to see it later. So let us start with circular motion. जैसे कि हमने देखा था लीनियर मोशन में, किसमें, लीनियर मोशन में, that the
path on which the object is traveling. Path on which object is traveling is a straight line. Is a straight line. अगर कोई ऑब्जेक्ट का पाथ स्ट्रेट लाइन है तो उसे हम कहेंगे लीनियर मोशन. सिमिलरली टॉपिक के नाम में ही हमें पाथ का नेचर पता चल जाता है. सिमिलरली in the name of the topic, that is circular motion, we know what is the type of path. या path का कैसा दिखेगा. Let us consider, नाम क्या है इसका, circular, मतलब हमारा path का शेप क्या होगा, circular होगा. A path will be in the form of circle. Our path will be in the form of circle, right? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो path जिसपे ऑब्जेक्ट मूव होगा, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पोजीशन 1 पे. कहाँ पर है, पोजीशन 1 पे. अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 पे है और वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग circumference of सर्कल. तो जब ऐसा कोई कंडीशन हो कि हमारा जो पाथ है वो सर्कुलर है और ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ पर है, ऑन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन. तो इतना याद रखना है कि whenever the object is moving along circumference of circle with some speed or velocity, then that motion is said to be circular motion. That motion is said to be circular motion. Okay, let's move further. अब circular motion का definition तो clear है सबको. Definition of circular motion is clear to everyone. क्या देखा हमने circular motion के definition में? When the object is moving on circumference of circle. When the object is moving on circumference of circle from position 1 to position 2, then that object is performing circular motion. That object is performing circular motion. Okay, यहाँ पर हमने देखा था अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस से. सिमिलरली व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, whenever the object is performing circular motion, उसके पास भी एक डिस्प्लेसमेंट होता है. उसके पास भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग. मान लेते हैं हमारे सर्कुलर पाथ है, दिस इज आवर सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ तो इसका सेंटर होगा. सर्कुलर पाथ तो इसका क्या होगा, सेंटर होगा. सेंटर से फर्स्ट पोजीशन ज्वाइन करना है, सेंटर से सेकंड पोजीशन को भी ज्वाइन करना है. सेंटर से किस को ज्वाइन करना है, फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन से. हमने मान लिया कि सेंटर का नाम है सी. क्या नाम मान लिया, सेंटर का नाम है सी. तो जब मैं सी और फर्स्ट पोजीशन को ज्वाइन करूंगा एंड सी और सेकंड पोजीशन को ज्वाइन करूंगा, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है. क्या बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है. तो इस एंगल को हम लोग नाम दे देंगे थीटा. क्या नाम दे देंगे हम लोग इसको, थीटा. ये जो थीटा बनाया हमने, इसी को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या कहेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. राइट, इसका हमारे पास फॉर्मूला भी है. इसका हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है. मान लेते हैं ये हमारा एस है. जितना डिस्टेंस सर्कमफरेंस पे कवर किया है, जितना डिस्टेंस सर्कमफरेंस पे कवर किया है किसने, ऑब्जेक्ट ने, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, उसे हम एस मान लेते हैं. तो अगर ये हमारा एस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम रेडियस ऑफ
सर्कल। क्या बन जाएगा हमारा? रेडियस ऑफ सर्कल। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट इज एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और ये हमें मिला है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क से। मैथ्स में एक फॉर्मूला था हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, वहां से हमें ये फॉर्मूला मिलता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो यहाँ पर हमने रिलेशन देख लिया कि जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, तब उसके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन, उसके पास क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होना चाहिए, राइट? तो जैसे कि लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है, यहां पर भी सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसे हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे हम उसे? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब ये एंगुलर वेलोसिटी का भी अपना एक रिलेशन है, किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ओमेगा से। जैसे हम लोग यहाँ पर इन लीनियर मोशन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओके, अब यहाँ पर देखो, हमें पता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का ये क्या था फॉर्मूला? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? ये था हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? अब यहां पर देखो, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं ds/dt। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ds/dt। क्या लिख सकते हैं हम लोग? ds/dt, राइट? अगर हम देखें, अगर s का वैल्यू पुट कर दे हम यहाँ पर, कहाँ पर? s की जगह, तो क्या बन जाएगा ये? d इंटू आर थीटा अपॉन dt। d इंटू आर थीटा अपॉन dt। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल कभी चेंज होने वाला है क्या? रेडियस ऑफ सर्कल कभी चेंज होने वाला नहीं है, पर हमारा जो थीटा है वो चेंजिंग है। हमारा थीटा क्या है? चेंजिंग है। यहाँ पर हमें थीटा अलग मिला है। अगर मैं फाइनल पोजीशन यहाँ कर दूँ, से दिस इज फाइनल पोजीशन 3, तो यहाँ पर हमें कुछ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इट इज चेंजिंग टाइम टू टाइम, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर r को बाहर निकाल दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा? r d थीटा बाय dt। क्या मिल जाएगा? r d थीटा बाय dt, बराबर। एंड d थीटा बाय dt क्या बन जाएगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज r ओमेगा। बिकॉज हमें पता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मिल गया मुझे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, बराबर। मुझे पता था v इज इक्वल टू क्या था? ds/dt। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था? ds/dt। तो मैंने लिख दिया इसको v इज इक्वल टू ds/dt, बराबर। फिर s की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? r थीटा,
अगर हम थीटा को डेरिवेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर ओमेगा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या था, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लेट अस सी वो कैसे मिलेगा हमें। हमें एक्सेलरेशन का पता है फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं dv बाय dt। क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt। सिमिलरली यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे हम लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। तो हमें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी। चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये एक फॉर्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन का। और अगर फर्दर हम अगर और स्टडी करेंगे तो हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए, यहाँ से मिला है हमें डी वी बाय डी टी। थोड़ी देर पहले हमें एक रिलेशन मिला था, कौन सा रिलेशन था वो, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्या था रिलेशन, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो अगर मैं इस v की जगह आर ओमेगा पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है, d अपॉन डी टी इंटू आर ओमेगा, d अपॉन डी टी इंटू आर ओमेगा। अगर मैं r को बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि रेडियस ऑफ सर्कल विल नेवर चेंज, अगर हम एक ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो r बाहर लेने के बाद क्या मिला मुझे, d ओमेगा बाय डी टी। यहाँ पर हमने देखा था d ओमेगा बाय डी टी क्या होता है, अल्फा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, r अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा a इज इक्वल्स टू आर alpha. So these are the three relations which we must consider while studying the circular motion. हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज तीन इक्वेशन देखे। सबसे पहला था s इज इक्वल्स टू आर थीटा। सबसे पहला क्या था, s इज इक्वल्स टू आर थीटा। सेकेंड है, सबसे पहला था s is equals to r theta. Second is v is equals to r omega, and third is a is equals to r alpha. These are the three basic formulae which we are going to use in circular motion in further studies. So this is for today. In next lecture we are going to see more in circular motion. Thank you.